Hello students, myself Pritesh Saxena, Assistant Director, Himalayan Institute of Technology and Management, Lucknow. Today in the next about half an hour, we will be learning about the design of the cylinder. So, in about next half an hour we will see that what is IC engine cylinder, what are the function of IC engine cylinder, what is the function of IC engine liner, what are the basic other formulas, and we will try to formulate all the basic dimension of the engine cylinder in the next about half an hour. So, let us start. In the next slide, or which is the very first slide of this class, you can see that this space is your IC engine cylinder. So, you are seeing this is the walls of the IC engine, these are the walls, and this is the water jacket which is being put it inside the engine cylinder. तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपको इंजन सिलेंडर दिख रहा है, ये आपका सिलेंडर हेड है जिसके ऊपर वेरियस माउंटिंग्स लाइक स्पार्क प्लग, इंजन वाल्व्स and other things are being mounted. You are seeing other components also like crankshaft, camshaft, exhaust valve, inlet valve, piston rings, these are other important component of the IC engine. We know what is IC engine, let us just have a small recap. We know that it can be classified as 2-stroke engine or 4-stroke engine. In case of 2-stroke engine, for every 1 revolution of the crank we get 1 power stroke. In case of 4-stroke engine, for every 2 revolution of the crankshaft we get 1 power stroke. Now coming back to the class, आज का हमारा मेन जो लेक्चर है वो है कि इस सिलेंडर को डिज़ाइन करना है, तो हमें देखना है कि इसके मेन पार्ट्स क्या है. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिख रहा है इसका स्पेस, यानी कि इसका जो ये बोर डाया आ रहा है, ये डायमीटर क्या रखी जाए, क्योंकि भाई सिलेंडर को जो डिज़ाइन करना है तो इसका डायमीटर पता होना चाहिए, इसकी वॉल्स की थिकनेस पता होनी चाहिए, वाटर जैकेट लगा हुआ है ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. सो we know that once the cylinder is being made, the main function of the cylinder is that it has to retain the fluid. Now we know that whenever the suction stroke takes place, in the suction stroke the inlet valve is open, and in case of petrol engine, petrol plus air mixture come inside the cylinder. In case of diesel engine, only air comes inside the engine cylinder. Then the suction valve gets closed and the piston reciprocates and it compresses the mixture inside the engine cylinder. After that, in case of petrol engine, sparks is initiated with the help of spark plug, and in case of diesel engine the nozzle sprays the diesel, because of which combustion of the fuel starts, which results in the development of great amount of pressure as well as a high amount of temperature is developed inside the engine cylinder. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स इंजन सिलेंडर क्या है, सबसे बड़ा फंक्शन है कि उसको फ्लूइड को जो कि कंबशन मिक्सचर है उसको अपने अंदर रिटेन करना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ड्यूरिंग द power stroke or during the compression stroke, when both the valves are closed, it is the engine cylinder which is retaining the fluid inside it. Secondly, इंजन सिलेंडर ही वो पार्ट है जो कि हमारे पिस्टन को गाइड कर रहा है, बिकॉज एज द पिस्टन इज रेसिप्रोकेटिंग फॉर ऑल दोज 4 स्ट्रोक, इट इज रेसिप्रोकेटिंग along the walls of the engine cylinder. So this is the main function of the engine cylinder. Now as we have just seen, because of the compression stroke, because of the power stroke, as the fuel is burnt, a huge amount of temperature is developed. It is near in the range of 2500 degree centigrade or even more. So that high amount of temperature needs to be sustained by the cylinder wall material. So students, the concern as a designer which we should always see that the temperature which we are developing inside the engine cylinder must be sustained by the material of the wall of the cylinder. हमें ऐसा मटेरियल चूज करना है जो कि
उतने हाई टेम्परेचर जो कि मैंने कहा कि 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जा रहा है उसको वो सस्टेन कर सके. सो फॉर दैट जनरली we go for cast iron cylinder or sometime we go for cast steel cylinder also, because these have the properties to sustain that high amount of temperature and that high amount of pressure, because pressure is also very high. So that needs to be sustained by. So that material which I have said, sometime we go for alloy steel also, and in that case the molybdenum or chromium, some that alloy has been added in case of cast steel and cast iron cylinder. Now we have chosen the material, material choose कर लिया है so that it can sustain that high amount of pressure as well as temperature. We have chosen cast steel, cast iron cylinder, or maybe some alloy of those materials. I have said कि maybe molybdenum is added or maybe chromium is added, sometime that. But now as we have seen that a high amount of temperature is developed, and we know that it is a continuous pressure, because after, you can say that each time the power stroke will be developed, a temperature, a huge amount of temperature will be produced because of the combustion of the gases. हर बार power stroke में काफ़ी high temperature produce होगा, and that high temperature has to be sustained by the cylinder wall material. Material choose कर लिया, but even then because of that high temperature, in case if we are not having some cooling arrangement और बार बार because of the power stroke temperature काफ़ी high develop हो रहा है, so if we do not have any arrangement for cooling, that can lead to failure of the valves. So cooling arrangement is very important in case of IC engine cylinder. Now as we have seen that cooling arrangement are classified as two types. Sometimes we are having air cooled engine और we are having water cooled engine. Air cooled engines की अगर हम बात करें तो जनरली वो सिंगल सिलेंडर इंजन जो होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, दोज आर सिंगल सिलेंडर इंजन, इनको हम एयर कूल्ड करते हैं. एयर कूल्ड इंजन इज बेसिकली दे आर ऑफ फिन टाइप. वी नो दैट वेदर वी आर considering the heat transfer through conduction, convection or radiation, the heat transfer rate is proportional to the area. So if we are increasing the area, heat transfer rate will increase. So this is the basic fundamental on which these fins are designed, because fins are nothing but these are extended surface areas, and we have seen that a fin type of arrangement is being put on the सिंगल सिलेंडर इंजन लाइक इन अवर बाइक्स और इन स्कूटर्स. हमने देखा अपने स्कूटर्स और बाइक पे फिन्स के अरेंजमेंट लगे रहते हैं, जिसके चलते सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वहां से कूलिंग हो पाती है. सो दीज आर बेसिकली एयर कूल्ड इंजन. बट समटाइम्स व्हेन द इंजन इज मल्टी सिलेंडर इंजन, जैसे कि हमारे कार की बात करें, हमारे ट्रक्स की बात करें, और इवन सम अदर व्हीकल्स आल्सो व्हिच आर मल्टी सिलेंडर इंजन, दिस fin type of arrangement is not sufficient, or you can say कि उससे जो हीट निकल रही है वो sufficient नहीं है कि हमारा इंजन properly cool हो सके. So in such cases we go for water cooled engine. अब water cooled engine से naturally सिलेंडर की कूलिंग फास्ट होगी. अब वाटर कूल्ड इंजन्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं या कैसे उनको दो भागों में बांटते हैं. सो दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लाइनर. तो कमिंग बैक टू लाइनर की स्टूडेंट्स, लाइनर क्या है? बेसिकली लाइनर्स आर द स्लीव विच इज फिटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर. नाउ व्हाई दिस लाइनर्स आर फिटेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर? एज आई हैड सेड कि ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज डेवलप्ड, a huge amount of pressure is developed inside the engine cylinder. So because of which there is a great probability that the surfaces of the cylinder may get wear off. ये बहुत ज़्यादा probability, क्योंकि piston बार बार reciprocate कर रहा है, तो जो walls है उसका surface में wear आएगी. तो अब बार बार जब wear आएगी तो उसको cylinder को replace करना it becomes too costly and it takes time also. So for that हम लाइनर्स इंसर्ट कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर, विच आर दी एक्स्ट्रा स्लीव मटेरियल विच आर इंसर्टेड इनसाइड द इंजन सिलेंडर, और उनको ही अगर हम रिप्लेस कर देंगे
तो हमारा काम इजीली, जैसे ही सरफेस वियर हुआ हम सिलेंडर को रिप्लेस कर देंगे, ख्याल में लाइनर को रिप्लेस कर देंगे। तो इस समय केवल लाइनर का जो मटेरियल है दैट शुड बी ऑफ वेरी गुड ग्रेड मटेरियल, अदर देन लाइनर मटेरियल वी कैन हैव लो ग्रेड मटेरियल, सो लाइनर शुड बी ऑफ गुड ग्रेड। नाउ इफ द वाटर जैकेट जिसको कि हम कूलिंग के लिए लगा रहे हैं वो अगर हमारे लाइनर से टच में है देन दैट इज कॉल्ड एज वाटर वेट लाइनर, एंड इन केस द वाटर जैकेट जो कि हम कूलिंग के लिए लगा रहे हैं वो लाइनर से हमारे टच में नहीं है देन दैट इज कॉल्ड एज ड्राई लाइनर। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस स्लाइड ऑल्सो, हियर यू सी दिस इज द सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है जिसके अंदर आपका कंप्रेशन ऑफ द गैस मिक्सचर, पेट्रोल प्लस एयर और मे बी एयर प्लस डीजल will take place, huge amount of temperature and pressure will be developed. Now here you see this is the water jacket, now this is the liner, this is the liner, you see that this is the liner, ये जो हमारा है ये हमारा लाइनर है, इधर भी आप देखिए ये लाइनर है। Now you see the water jacket which is being provided to cool this engine is not in touch with this लाइनर, ये लाइनर वाटर जैकेट जो है लाइनर से टच में नहीं है, सो दिस इज द ड्राई लाइनर। वेयर एज इफ यू कम टू वेट लाइनर यू सी दैट इन केस ऑफ वेट लाइनर दिस इज द लाइनर, ये आपका लाइनर है और वाटर जैकेट जो कि कूलिंग के लिए लगाया गया है ये आपके लाइनर से टच में है, तो ऑफ कोर्स द कूलिंग विल बी मच बेटर इन केस ऑफ वेट लाइनर। नाउ ऑफ कोर्स द कूलिंग विल बी बेटर इन केस ऑफ वेट लाइनर, but there is a problem also. What is the problem? Ki suppose a leakage occurs and it is in touch with the liner, so that leakage can go inside the engine cylinder, so it can ruin off the mixture. So this is the problem with the wet liner. Otherwise to manufacture the wet liner is very easy, but if we come back to dry liner you see that it is a hidden type of jacket. ये जो वाटर जैकेट है ये बीच में बनी हुई है। टू मैन्युफैक्चर ड्राई लाइनर इज अ डिफिकल्ट जॉब एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर ए वेट लाइनर। नाउ वी हैव सीन, हमने पहले भी बताया कि इसका फायदा क्या है लाइनर्स का, कि नाउ द एडवांटेज ऑफ लाइनर इज दैट वी कैन वेरी इजीली रिप्लेस द लाइनर ओनली व्हेन द सरफेसेस बिकम वियर ऑफ। जब भी सरफेसेस में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम बड़े इजीली केवल हमको लाइनर को रिप्लेस करना है और बाकी सिलेंडर हमारा सेफ है, तो केवल लाइनर का मटेरियल गुड ग्रेड रखेंगे, बाकी मटेरियल हमारा जो है वो लो ग्रेड का भी हो सकता है। सो ये लाइनर से हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। नाउ बिकॉज लाइनर हैज टू सस्टेन, अदर मटेरियल हमारा लो ग्रेड हो सकता है, लाइनर को गुड ग्रेड होना है तो लाइनर का जो मटेरियल हमने कहा वो कास्ट स्टील और कास्ट आयरन हमने कहा था, और हमने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने अलॉय स्टील को यूज कर सकते हैं, कास्ट स्टील विद मॉलिब्डेनम और कास्ट स्टील विथ निकल क्रोमियम is a very good material for the liner, because with all these introduction of the chromium and the molybdenum the liner gets sufficient strength and the surfaces जो लाइनर के हमारे प्रोड्यूस होते हैं इनको ऐड होने से उनमें ये क्षमता आ जाती है कि वो हम दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं। सेकेंडली द लाइनर्स आर ऑल्सो हीट ट्रीटेड सो दैट इट बिकम्स मच हार्डर सो दैट इट कैन सस्टेन द पिस्टन जो कि उस पर रेसिप्रोकेट कर रही है तो वो भी कुछ साइड थ्रस्ट लगाती है, तो उसको भी ऑल्दो द वैल्यू ऑफ साइड थ्रस्ट इज नॉट दैट हाई बट इवन दैट हैज टू बी सस्टेन्ड बाय द सिलेंडर लाइनर। So cylinder liner should always be of good grade material and other material other than the cylinder liner can be of low grade. तो जब भी हमारा मटेरियल खराब हुआ हम केवल सिलेंडर लाइनर को हटा के रिप्लेस करके दूसरे को ला सकते हैं। सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर whatever the thermal stresses that will be produced that can be sustained by the cylinder liner only. So we can compensate that also with the help of cylinder liner की जो भी सिलेंडर लाइनर जो भी हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट कैन बी इजिली सस्टेन्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी तो वो लाइनर में ही ऐसी क्षमता हम प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के चलते जो थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसको वो सस्टेन कर सके। नाउ इन सब जानकारियों के बाद
अब अगर हम समझें कि हमें जो, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू डिजाइन दिस इंजन, वी हैव टू फॉर्मुलेट द डिजाइनिंग, वी शुड नो, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था कि डायमीटर है सिलेंडर का, कि बोर डायमीटर क्या होगा, देन वी शुड नो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल, वी शुड नो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हेड प्लेस्ड, वी शुड नो कि हेड को जो रखा गया है सिलेंडर के ऊपर उसको चारों ओर से, बिकॉज इफ वी सी द सिलेंडर फ्रॉम द टॉप व्यू इट विल बी ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो दैट इज बीइंग, that cylinder head is placed over the cylinder bore with the help of number of studs। तो हमको इन सारी चीजों को डिजाइन करना होगा। सबसे पहले सिलेंडर का बोर, सिलेंडर की लेंथ, फिर हम डिजाइन करेंगे सिलेंडर के वॉल की थिकनेस, फिर हम डिजाइन करेंगे सिलेंडर हेड, और फिर सिलेंडर का फ्लैंज क्या होता है देखेंगे, और उसके ऊपर जो हेड लगा हुआ है उसको, जो हम स्टड्स के द्वारा हेड लगाएंगे उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सिलेंडर के बोर डाया के। स्टूडेंट्स, इन केस, जैसा कि मैंने पहले रिकैप में आपको बताया था कि आईसी इंजन सिलेंडर कैन बी आइदर 4 स्ट्रोक और इट कैन बी 2 स्ट्रोक। इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, द बोर डाया ऑफ द सिलेंडर can be very easily calculated by this empirical relation. This empirical relation will be given to you in your data handbook. इस empirical relation से आप अपने सिलेंडर का बोर डाया निकाल सकते हैं, जहां पर ये P जो है ये इंडिकेटेड पावर ऑफ द इंजन है। PM क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। एज यू नो दैट सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक्स होते हैं। प्रेशर हर समय सिलेंडर के अंदर बदलता रहता है, तो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर चारों स्ट्रोकों के दौरान होता है दैट इज PM, उसकी वैल्यू आपको पता है, आपको अपने इंजन की इंडिकेटेड पावर पता हो, आपको V इज द मीन पिस्टन स्पीड अगर आपको पता हो, तो आप सिलेंडर का बोर डायमीटर D निकाल सकते हैं। यहां पर P पावर जो है वो किलोवाट में लेना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मेगापास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेना है, V मीन पिस्टन स्पीड मीटर पर सेकंड में डालना है, तो आपको सिलेंडर का डायमीटर मिलीमीटर में मिलेगा। यहां पर ध्यान देने बात है कि पावर शुड बी इन किलोवाट इंडिकेटेड पावर, PM शुड बी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगापास्कल, एंड V शुड बी इन मीटर पर सेकंड, देन यू विल गेट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन mm। नाउ स्टूडेंट्स, एक और फॉर्मूला है जिससे कि आप सिलेंडर का बोर डाया निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वाला जो रिलेशन मैंने आपको दिखाया था, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। नाउ इन केस द इंजन इज नॉट 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो भी हम इस डायमीटर से, इससे हम दोनों का निकाल सकते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन का भी, 2 स्ट्रोक इंजन का भी। यहां पर एक फॉर्मूला है कि इंडिकेटेड पावर इज PM LAN/60। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट PM इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, हियर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, and what is N? N is the number of working stroke per minute, number of working stroke per minute। अब हमने मालूम है कि for 2 stroke engine, for every revolution of the crankshaft 1 power stroke is produced, and for 4 stroke engine, for every 2 revolution of the crankshaft 1 power stroke is produced। तो small n की वैल्यू अगर हमें n, कैपिटल N क्या है? स्पीड ऑफ द इंजन, अगर हमें पता है RPM में, तो स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N के बाद बराबर हो जाएगी अगर वो 2 स्ट्रोक इंजन है, and in case the engine is 4 stroke engine, the value of this small n will be equal to capital N/2। ये किसके लिए होगी? 4 स्ट्रोक के लिए। और अगर हमारा n ये किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा, किसके लिए? 2 स्ट्रोक के लिए। तो इस इंजन के, इससे हम कैसे निकालेंगे बेसिकली, बिकॉज समटाइम आपको इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी दी रहेगी। इन केस इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं दी है, तो स्टूडेंट वी विल ऑलवेज एज्यूम मोर देन 80%। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपको इंजन की एफिशिएंसी नहीं दी है तो यू विल ऑलवेज अज्यूम मोर देन 80%। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी? इट इज आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट इज ब्रेक पावर, इनपुट इज इंडिकेटेड पावर। सो इन केस यू नो द मैकेनिकल एफिशिएंसी, व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मैकेनिकल विल बी इक्वल टू ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। सो ब्रेक पावर विल बी इक्वल टू efficiency mechanical into indicated power, and what is indicated power? Indicated power is PLAN/60। so in case आपको ब्रेक पावर पता है, आपको इंजन की एफिशिएंसी पता है, तो आप यहां से जो यहां पर P क्या है? PM इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, दिस इज PM। L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये डाल करके भी आप इंजन के डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर एरिया की जगह आप π/4d² पुट कर देंगे। लेंथ इज ऑलवेज, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को भी हम डायमीटर के टर्म में दिए रहते हैं आईसी इंजन सिलेंडर में,
तो वो हम जब अब कैलकुलेशन वाला चैप्टर करेंगे तो मैं भी दिखाऊंगा अभी कि लेंथ जो है वो कैसे डायमीटर से रिलेटेड है। तो एल जनरली 1.5d और 1.6d के बीच में हम लेते हैं, तो 1.5d पुट कर देंगे, एरिया पाई बाई 4d स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहां पर ये d क्यूब के टर्म में आ जाएगा। इससे भी हम डायमीटर निकाल सकते हैं। नाउ हमारा सिलेंडर का डायमीटर क्लियर हो गया है। जब डायमीटर क्लियर है, लेंथ भी ऑलमोस्ट क्लियर है। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर के वॉल में, क्योंकि जो गैस प्रेशर है वो ऐसे भी लग रहा होगा, ऐसे भी लग रहा होगा, दोनों तरफ से लग रहा होगा, तो बिकॉज ऑफ दिस द सिलेंडर वॉल के ऊपर आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस दोनों प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ चूंकि पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो मैंने पहले भी बताया था साइड थ्रस्ट भी होता है, लेकिन उस साइड थ्रस्ट की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे। बेसिकली वी विल बी गोइंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस। हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये जरूर निकालना है। तो अब ये दोनों स्ट्रेसेस, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में भी देखा था कि ये दोनों स्ट्रेसेस आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका हमें दोनों, और ये दोनों स्ट्रेसेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिलेंडर के वॉल के ऊपर लग रहे हैं और ये दोनों एक साथ लग रहे हैं, तो हमें नेट स्ट्रेस भी निकालना होगा। तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे, ये मानेंगे कि साइड थ्रस्ट की वैल्यू नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों एक साथ लग रहे हैं तो नेट स्ट्रेस भी निकालेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर हम देखें तो ये इस एरिया पे लगता है, क्योंकि ये आपका सिलेंडर है इस डायरेक्शन में, तो जो एरिया दीवार का इसको सस्टेन कर रहा है वो ये है। तो सिलेंडर का अगर थिकनेस हमने टी मान ली, और थिकनेस किसकी होगी, दीवार की। अब ये सिलेंडर जो अगर हम देखें तो ये आपका इनर डाया है, और ये चूंकि सिलेंडर ऐसे है, ये आपका बोर्ड आया है, ये आपका बोर्ड आया है, ये जो आपका है ये आपका बोर्ड आया है डी, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो अब अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो कि गैस का फोर्स है वो कहां लगेगा, सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो तो इसी डायमीटर के अंदर है, तो उसके चलते जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, पाई बाई 4d स्क्वायर पी, क्योंकि प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के चलते जो फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, पाई बाई 4d स्क्वायर। अब ये जो फोर्स, गैस फोर्स लग रहा है, इसको किसको सस्टेन करना है, इसको सस्टेन करना है सिलेंडर के वॉल को। तो सिलेंडर के जो वॉल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। यहां पर ये वाला एरिया जो है आउटर, जो कि सिलेंडर की वॉल है, ये आपके जो है ये आपका हो जाएगा डी। तो ये जो दीवार का एरिया उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सहेगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो आपका होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऐसे लग रहा है तो ये आपका सिग्मा सी लगेगा, ये सिग्मा सी है, ये सिग्मा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमने निकाल लिया है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कैसे लगेगा, ऐसे, ये दीवार है, इधर भी एक दीवार होगी, इधर भी दीवार होगी। अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ऐसे, ये सिग्मा सी लग रहा है, तो सिग्मा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जो गैस प्रेशर लग रहा है वो किस प्रेशर एरिया में लग रहा है, वो इस एरिया में लग रहा है। तो फिर वही बात, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया। तो ये सिलेंडर का डायमीटर डी है और लेंथ कितनी है, एल है, तो जिसमें लग रही होगी वो डी इंटू एल, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, डी एल पी डिवाइडेड बाई वो दीवार का एरिया जो कि उस फोर्स को सस्टेन कर रहा है। तो वो एरिया कौन है, ये अगर दीवार की थिकनेस आपकी टी हो गई तो टी इधर भी है और टी इधर भी है, लेंथ, तो टोटल टी इंटू एल इधर और टी इंटू एल, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2TL। सो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, वो आएगी PD बाई 2T। तो यहां से हम नेट स्ट्रेस जब निकाल लेंगे तो नॉट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा एल माइनस सिग्मा एल बाई सिग्मा सी बाई एम। नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाई एम। हमने सिग्मा एल और सिग्मा सी की वैल्यू अभी निकाल ली है। तो यहां से जो नेट लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि दोनों स्ट्रेस एक साथ लग रहे हैं, तो उनके चलते जो नेट स्ट्रेस डेवलप होगा वो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी बाई एम होगा। नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाई एम होगा। यहां पर 1/m क्या है, पॉइजन रेशियो, जो कि आपको दिया रहेगा। अब हमने देखा कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स कभी भी जो हम दीवार की थिकनेस निकालेंगे वो यूजिंग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उतना स्ट्रेस तो दीवार को सस्टेन करना ही करना है, तो उसकी मदद से हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की
दीवार की थिकनेस निकालेंगे सिलेंडर के वॉल की। तो अभी मैंने देखा था सिग्मा सी आया था PD/2T, तो यहां से T कितना हो जाएगा PD/2 सिग्मा सी प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज सी? सी इज द रीबोरिंग फैक्टर। सी क्या है? हमारा रीबोरिंग फैक्टर है, जो कि हम क्या मान के चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम सिलेंडर में थिकनेस रखते हैं, जिससे कि अगर एक बार दोबारा रीबोर करना पड़े तो भी थोड़ी सी स्पेस रहे। अब अगर हमको सिलेंडर की थिकनेस वॉल की मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये अदर डायमेंशन जो कि वाटर जैकेट की थिकनेस, फ्लैंज की थिकनेस और फ्लैंज से लेकर के सेंटर ऑफ द बोल्ट की थिकनेस, ये सारी चीज हम लेंथ ऑफ सिलेंडर भी लेंथ ऑफ सिलेंडर प्लस क्लियरेंस से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर आपका सिलेंडर है, यहां पर मैंने देखा ये डायमीटर निकाल लिया, दीवार की थिकनेस निकाल ली। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है? ये डीपी निकालना है, इसका फ्लैंज का बोल्ट का जो आपका स्टड्स है उसका डायमीटर निकालना है। अब ये हमारा वेट लाइनर सिलेंडर है। अब सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड डाला जाता है। सिलेंडर हेड क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो गैस फोर्स डेवलप हो रहा है वो सिलेंडर हेड के द्वारा ही सस्टेन होगा। दूसरा, सिलेंडर के हेड के ऊपर ही आप वेरियस वॉल्व और माउंटिंग लगाते हैं। तो अब सिलेंडर हेड जो डिजाइन होता है वो बेसिकली हम फ्लैट सर्कुलर सिलेंडर हेड मान के चलते हैं, और उसके लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पर ये दिया हुआ है। यहां पर कैपिटल सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.1 होती है। ये डी बोर्ड आया आप निकाल चुके हैं। पी आपको दिया रहता है गैस प्रेशर, सिग्मा सी सिलेंडर मटेरियल का हम 30 to 50 मेगापास्कल के बीच में ले लेते हैं, जिससे थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड निकल गया। उसके बाद अब ये सिलेंडर हेड किसके द्वारा लगा हुआ है? नंबर ऑफ स्टेट्स के द्वारा है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स, अब टोटल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है? जैसा कि मैंने बताया था टोटल फोर्स डेवलप हो रहा है π/4d²p। उसके ऊपर सिलेंडर हेड लगा दिया, तो सिलेंडर हेड को ही इस फोर्स को सस्टेन करना है। तो अगर हमने n नंबर ऑफ बोल्ट लगाए तो टोटल जो फोर्स लगेगा वो, अब सिलेंडर हेड का मटेरियल का हमने सिग्मा टी मान लिया, तो π/4dc² इंटू सिग्मा टी इंटू NS को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो यहां से कोर डाया मिल जाएगा। जब कोर डाया हमको मिल जाएगा तो हम नॉमिनल डाया का फॉर्मूला DO = DC/0.84 से निकाल लेंगे। अब सिलेंडर फ्लैंज और स्टेट जब निकल गया तो यहां पे सिलेंडर फ्लैंज की थिकनेस हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमें यह ध्यान देखना है कि अगर लीक प्रूफ जॉइंट है तो जो पिच सर्किल डायमीटर है वो 19 DO√2 से 28.5 DO√2 होना चाहिए। अब यहां पर हमें कहना क्या है कि ये जो हमें डीपी चाहिए, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ दी, क्या पिच सर्किल डायमीटर ऑफ दी जो बोल्ट हमने लगाया, क्योंकि अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमारा ये सर्कुलर में नंबर ऑफ स्टड्स लगे हैं, तो डीपी चाहिए और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ डीओ चाहिए हमको। डीओ किसका? जो फ्लैंज का एक्सटर्नल डायमीटर है। तो इसके लिए सीधे सीधे इंपेरिकल रिलेशन है कि डीपी की वैल्यू जो होगी वो होती है डी प्लस 3DO। यहां पे डीओ क्या है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। और जो एक्सटर्नल डायमीटर डीओ ऑफ द फ्लैंज है वो डीपी प्लस डीओ प्लस 12। यहां पर डीपी चूंकि हम निकाल चुके होंगे पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड, और डीओ नॉमिनल डाया प्लस 12 करके हम डीओ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हम फाइनली अगर आ जाए तो हमने सिलेंडर का ये डी निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया, ये डीपी निकाल लिया कि जो स्टड्स पूरे सर्किल में है उनका पिच सर्किल डायमीटर क्या होगा। ये जो हमारा सिलेंडर का फ्लैंज था इसकी जो आउटसाइड डायमीटर डीओ है वो भी हमने निकाल ली। तो इन सभी को यूज करके हम सिलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।